वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और सुंदर दिन दिखाता। 24 आज 24 अप्रैल 2026 ਤੇ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੇ ਸਰੋਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਸਤਸੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, बादशाह शाह सब वस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भयो भगवान, निर्भय होए भयो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर्यामी, शरण परे प्रभ अंतर्यामी। नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। फिर कैसो हर जन प्यारे, हर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰੋਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬਈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰੋਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਸਰੋਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਟੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਟੀਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
दीवान लगती थी गुरां दी शरण पिया दीवान लगती थी गुरां दी शरण पिया दीवान लाग गई दीवान लाग पार ब्रह्म शरण आई जी गुरां दी शरण पिया दीवान लगदी जी गुरां दी शरण पिया ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਹਾਂਜੀ सब व्याध मिटाई जी गुरां लग गई पार ब्रह्म सरणाई ताती मौन लग गई पार ब्रह्म सरणाई चौगिर्द हमारा राम का चौगिर्द हमारा राम का दुख लगे ना पाई ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई सतगुर पूरा पेटिया सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई जिन बनत बनाई राम नाम आखद दिया राम नाम आखद दिया एकालिव लाई एकालिव लाई एकालिव लाई सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 राम नाम आखद दिया एकालिव लाई एकालिव लाई ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई राख लिए तिन रखन हार राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई सब ब्याज मिटाई कहो नानक कृपा भई कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई प्रभु भय सहाई प्रभु भय सहाई ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई
ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगै ना पाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरणाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरणाई। पार ब्रह्म सरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, कोई होर सुना रहे? तजिंदर कौर जी कोई होर सुना रहे ने? गेस्ट आ गए, कितने चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? नहीं, मैं आई सी सूट स्टिच कर लिता, ऐसे सूट लेना आई सी उधर। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਛੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ 36 ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੂ, मैं
मैं क्या मांगू, किछ थिर ना रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो, तू ਪ੍ਰਭਦਾਤ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮਤਲਬ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰੰਕ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਤੂੰ ਵਰਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਤਰਜਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ये सगल द्वार को छाड़ के करो तुम्हारो द्वार। जय हो। मन निर्मल होए संता तूरे, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तूरे, है ना। ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੂੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਧਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਧਾਰੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ।
तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। चरण कमल हृदय और तारे, चरण कमल हृदय और तारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी अखियों के तारे हो तुम, श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, चरण कमल बलिहारी, मेरे बांके बिहारी, चरण कमल बलिहारी, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, 14वें अध्याय के श्लोक क्रमांक हमने 17 तक श्रवण किए। आज 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो पिछले श्लोक में के जो संदेश थे प्रभु के मुखारविंद से, तो परमात्मा ने ये संदेश दिया कि यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात सत्य रज तम, ये प्रकृति के तीनों गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ देता है, फिर उन्हीं के अनुसार वैसा कार्य करता है। उसके अंतःकरण में वैसी ही वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार वो कर्म करता है और फिर उन कर्मों का फल ऊंच नीच गतियों में होता है, जो उसे भुगतना पड़ता है। तो जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, सिर्फ परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह फिर प्रकृति के गुणों में नहीं बंधता। साधना करते करते, आगे चलते चलते धीरे धीरे उसका अहंकार, अहमता परिवर्तित होकर उस परमात्मा की ओर ही लग जाती है। इस तरह वो दृढ़ मन से उस परमात्मा की भक्ति करता है। तब उसके अपने स्वतः ही वह गुणातीत स्वरूप हो जाता है। इसी का नाम बोध है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अब प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिनके जीवन में सत्य रज तम गुण की प्रधानता रहती है, उनके मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होती है। इस श्लोक में प्रभु बता रहे हैं उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था, कि जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। ये जो सत्य रज तम गुण है, ये एक लहर की तरह मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। उसके जीवन काल में कभी सत्व गुण की लहर उठती है, कभी रजो की, कभी तमोगुण की। तो तीनों गुण तो रहते ही हैं। तो कभी किसी की प्रधानता हो जाती है, कभी कोई गुण प्रभावित हो जाता है, कभी कोई। तो उसी के विषय में अब उस भाव में जिसकी मृत्यु होती है, तो उनकी गति का कैसे कैसे होती है, ये प्रभु बता रहे हैं कि जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और जिसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया, तीर्थ व्रत दान शुभ कर्म किए, दूसरों के सुख आराम के लिए कोई अन्य क्षेत्र चलाए, सड़कें बनवाई, पशु पक्षियों की सुख सुविधाओं के लिए पेड़ लगाए, गौशाला इत्यादि जो भी परमार्थ का कार्य किया, तो ये सब सत्व गुण ही आता है। तो जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्व गुण का संग होने से, उनकी आसक्ति होने से स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं। उद्धर्व गच्छन्ति, बड़े बड़े उच्च लोक में जाते हैं। तो उद्धर्व लोकों में जाने वाले मनुष्यों में तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब उन्हें अलौकिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर प्रभु ये बता रहे हैं ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, लेकिन उनके मन में कोई आसक्ति नहीं होती। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, अब जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भी संग्रह करना, भोग करना, ऐशो आराम करना, पदार्थों में ममता, आसक्ति आदि में लगे रहते हैं, ये सब रजोगुण की ही प्रधानता के कारण है। तो रजोगुण के कार्यों में, चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर जब छूट जाता है, तब वे पुनः इसी मृत्यु लोक में फिर जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अर्थात जो सत्व गुण में हो गए जिनकी, तो वो उच्च लोक में चले गए, और जिनकी राजस्व रजोगुण में जिनके चिंतन करते हुए मृत्यु हुई, अर्थात जैसे मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी मान प्रतिष्ठा, जो सांसारिक वस्तुएं, अगर इन्हीं का चिंतन करते हुए, तो फिर वो दोबारा मनुष्य शरीर में उनको जन्म लेना पड़ता है। तिष्ठन्ति, जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं, मतलब अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते,
मर्यादा में रहते हुए आचरण करते हैं, लेकिन पदार्थों व्यक्ति में आसक्ति और ममता होने के कारण उन्हें फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। जगन्य गुण विस्तृता अधो गच्छन्ति तामसः। अब प्रभु आगे कह रहे हैं कि जिन मनुष्य के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और जिनके कारण उन्होंने प्रमाद आदि के वश में निरर्थक पैसा और अपना समय बर्बाद किया, जो आलस और नींद में ही पड़े रहते हैं, अनावश्यक निद्रा लेते हैं, अनावश्यक कार्यों को करते हैं, और जो आवश्यक कार्यों को जिनको उन्होंने समय पर पूरा नहीं किया, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, दूसरों को दुख ही देते आए हैं, और झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, तो ऐसे तमोगुण में जिनकी प्रधानता होती है, तो तमोगुण कार्य के चिंतन में ऐसे मनुष्य की मृत्यु उन्हें अधोगति की ओर लेके जाती है। अधोगति अर्थात अधोगति हो गई जैसे पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत, जो नीच योनि प्रभु कहते हैं कि उनमें फिर उनको जन्म लेना पड़ता है उनके कर्म के अनुसार। तो भाव ये है कि सात्विक राजस और तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति को अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार होगा। अर्थात जिस तरह का उन्होंने चिंतन किया उसमें उनकी मृत्यु हो गई तो वैसी योनि तो मिलेगी, लेकिन जो उन्हें सुख या दुख भोगना पड़ेगा वो उनके कर्मों के अनुसार होगा। जैसे हम कभी कभी देखते भी है ना कि जैसे किसी को अगर कुत्ते की योनि मिलती है तो एक गली का भी कुत्ता होता है, हम गली नुक्कड़ पे देखते हैं कोई भूख प्यास से तड़प रहा है, उसकी स्किन भी बहुत खराब हो गई है, इस तरह का होता है। और कोई कोई जो है इतना अच्छे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें सारे परिवार का प्यार मिलता है, अच्छा खाना भोजन भी मिलता है। तो योनि तो यही भगवान कह रहे हैं कि अंतिम चिंतन के अनुसार यदि वह कुत्ता बन जाता है, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है तो वो योनि पशु की, लेकिन उसको देखो सुख कितना मिल रहा है, आराम कितना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और एक जीव गली गली में भटक रहा है। तो ये सुख दुख जो है कर्मों के अनुसार है। कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फलस्वरूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। अगर किसी परिवार के सदस्य के प्रति कोई उसका मोह है, कि बच्चे के लिए मोह है कि मेरा बेटा मेरी पुत्री या मेरी पत्नी, किसी के लिए भी अगर उसके है, तो फिर वो मनुष्य से ममता होने के कारण फिर उसको इसी पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो अलग अलग परिस्थितियों के कारण उसे कर्मों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। तो उसके शरीर में रोग ही रोग भी रहेंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, पहनने के लिए कपड़ा आदि के लिए फिर उसको कठिनाई भी होगी। तो सात्विक गुण बढ़ाने के लिए प्रभु कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ही काम करना चाहिए, खाने पीने का हमें सात्विक ध्यान रखना चाहिए, राजस तामस ऐसे तामसी भोजन और राजसी भोजनों से बचना चाहिए, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करना चाहिए, शुद्ध पदार्थ पवित्र स्थानों आदि का सेवन करना चाहिए। इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक भजन सिमरन ध्यान करना चाहिए, शास्त्र विदित जितने भी शुभ काम है वो करने चाहिए। कभी भी बुरे कर्म जिससे दूसरे को कोई भी हानि कोई भी कष्ट हो ऐसे नहीं करने चाहिए। तो ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। जो भी मंत्र जाप करें पूजा पाठ करें वो सात्विक ढंग से हो, जिससे सात्विक संस्कार अर्थात सत्व गुण बढ़े। श्रीमद् भागवत में भी गुणों को बढ़ाने के लिए 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतवः, कि शास्त्र जल खाना पीना प्रजा अर्थात संग स्थान समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये जो 10 वस्तुएं बताई हैं कि यदि ये सात्विक हो तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, और यही अगर राजसी हो जाए तो रजोगुण और तामसी गुणों की वृद्धि करते हैं।
शास्त्र अर्थात जो पढ़ने की किताबें हैं, अगर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा होंगे। जैसे हम अपने सदगुरु महाराज जी की जीवन परिचय या रामायण जी और श्रीमद् भगवद गीता, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं पवित्र, जो हमारे साधु संतों के और हमारे जो ऋषि मुनियों की वाणी से, हमारे संत महापुरुषों की मुखारविंद से निकले हैं, तो जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे वैसे ही हमारे अंदर संस्कार बनेंगे। और जैसा हमारा खान पीन होगा, अगर सात्विक होगा तो सात्विक गुण, अगर राजसी होगा या तामसी होगा तो वही गुण बना देंगे। प्रजा संग, अर्थात हमें संग किसका करना है? अगर हमारी संगति साधु संतों वाली होगी, अच्छे सज्जनों में बैठेंगे तो हमारी फिर सोच, हमारी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। अगर हमारा संग, हमारी संगति बुरी है तो हमारे उन्हीं गुणों का प्रभाव पड़ेगा। स्थान समय, कैसे स्थान पे जाना है, किस समय जाना है, कैसे कर्म करने हैं, हमें कैसे ध्यान मंत्र, और कैसे हमें हमारे अंदर संस्कार जो हैं अच्छे बने, सात्विक बने। तो यदि ये सब सत्व हैं, सात्विक हैं, तो हमारे फिर सात्विक गुणों की ही वृद्धि करते हैं। अन्यथा फिर ये रजो और तमो गुण की वृद्धि करते हैं। तो हमें अपने सात्विक गुणों को बढ़ाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय, भगवद गीता की जय, जय महाराज की जय। धन्यवाद धन्यवाद संगीता जी, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद संगीता, हाजरी बहुत सुंदर आपने लगाई। बहुत जय सुंदर। बापू जी, सारे संगत जी। जय बापू जी, अरोड़ा साहब।